السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں سدرا میر۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ذکر ایس سی سی پی کے لاپتہ افسر ساجد گوندل کا، جو 5 روز بعد واپس آ گئے۔ ٹویٹر پر اپنی بازیابی کا بتایا، پولیس نے بھی تصدیق کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ اجلاس میں ساجد گوندل کی بازیابی کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی تھی۔ اسلام آباد سے نور الامین دانش کی رپورٹ۔ وزیر اعظم عمران خان کے نوٹس کے چند گھنٹے بعد ہی ایس سی سی پی کے لاپتہ افسر مل گئے۔ ساجد گوندل نے ٹویٹر پر لکھا کہ خیریت سے واپس پہنچ گیا ہوں، گمشدگی پر فکر مند ہونے والے دوستوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایس پی رورل اسلام آباد نے بھی سرکاری افسر کی بازیابی کی تصدیق کر دی۔ پولیس کے مطابق ساجد گوندل نے منظر عام پر آنے کے بعد رواد ٹی چوک سے گھر والوں سے رابطہ کیا۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جوائنٹ ڈائریکٹر ساجد گوندل 3 ستمبر کی شام اسلام آباد سے لاپتہ ہوئے تھے۔ سرکاری افسر کی گاڑی زرعی تحقیقاتی مرکز شہزاد ٹاؤن کے قریب کھڑی ملی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ اجلاس کے دوران ساجد گوندل کے اغوا کے معاملے پر 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی وفاقی حکومت اور سیکیورٹی اداروں کو 17 ستمبر تک بازیابی یقینی بنانے کی ہدایت کی تھی۔ ساجد گوندل کی خیریت سے واپسی پر ان کی اہلیہ نے وزیر اعظم عمران خان، چیف جسٹس ہائی کورٹ اور میڈیا کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ساجد سے بات ہو گئی ہے، وہ سرگودا روانہ ہو گئے ہیں۔ ان کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں۔ پہلے تو میں میڈیا کی، پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب کی، چیف جسٹس آف پاکستان ہائی کورٹ کی میں بہت شکر گزار ہوں، جن کے تعاون سے آج ساجد بازیاب ہوئے۔ میں ان سب کی بہت شکر گزار ہوں۔ ساجد صاحب سے میری ابھی بات ہوئی ہے۔ ساجد اپنے ریلیٹیوز کے ہمراہ سرگودا کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ بھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ ایکچولی میری ان سے ویڈیو کال پہ بات نہیں ہوئی، میری صرف وائس کال ہوئی ہے ان کے ساتھ۔ ابھی میں کچھ بھی مزید ڈیٹیل نہیں بتا سکتی کیونکہ ان کا فون اگین بند جا رہا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی شہری ہوں، اور یہ جتنا میڈیا ہے انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، میں آپ سب سے بہت خوش ہوں۔ پرائم منسٹر صاحب نے آج 3 رکنی کمیٹی میں اس چیز کو لیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کیسے ان کا شکریہ ادا کروں، میرے پاس الفاظ نہیں۔ میں آپ سب کی شکر گزار ہوں۔ اور اس وقت سما کے نمائندے شہزاد علی ساجد گوندل کی رہائش گاہ پر موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں۔ شہزاد بتائیے گا، ساجد گوندل کے اہل خانہ کا کیا کہنا ہے؟ ان کی اہلیہ کی گفتگو تو ابھی ہم نے سنی، یقیناً بڑے خوش ہوں گے وہ لوگ۔ جی بالکل فواد، ہم اس وقت موجود ہیں ساجد گوندل ایس سی سی پی کے جو افسر تھے، وہ 5 روز قبل تھانہ بنی گالہ کی حدود سے لاپتہ ہوئے تھے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل رواد کے قریب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ساجد گوندل ملے ہیں اور ان کے جو ہے وہ قریبی اہل خانہ کے گھر پہنچایا گیا تھا، جہاں سے وہ اب سرگودا کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کی اہلیہ اور ان کے جو والد صاحب سے اب سے تھوڑی دیر قبل انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کافی خوش ہیں، ان کی ساجد سے بات بھی ہو چکی ہے، وہ خیر و عافیت سے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ہمراہ سرگودا روانہ کر دیا گیا ہے، اور ہم بھی جو ہے وہ اب سے تھوڑی دیر بعد یہاں سے سرگودا روانہ ہو جائیں گے۔ ساجد گوندل ایس سی سی پی کے جو افسر ہیں وہ 5 روز قبل جو ہے وہ تھانہ بنی گالہ کی حدود سے لاپتہ ہوئے تھے، جو آج جو ہے اب سے تھوڑی دیر قبل بازیاب ہو چکے ہیں۔ ان کی فیملی نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ اس حوالے سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ معاملہ کابینہ کو بھجوایا تھا، جس پر آج دن میں جو ہے عمران خان کی جانب سے اس معاملے پر 3 رکنی کمیٹی بھی بنائی گئی تھی، جس کے چند ہی گھنٹوں بعد جو ہے وہ ایس سی سی پی کے جو افسر تھے وہ بازیاب ہو چکے ہیں، اور اب باقاعدہ طور پر ان کی فیملی سے بھی جو ہے وہ اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ ساجد گوندل بازیاب ہو چکے ہیں، اور وہ سرگودا کے اپنے آبائی گھر کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ محلے دار اور جو رشتہ دار تھے وہ جوک در جوک اس فیملی سے ملنے آ رہے تھے، یقیناً وہ بھی خوش ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور کراچی میں زیادتی کے بعد قتل کی گئی 6 سالہ بچی کے قاتل کا ابھی تک سراغ نہیں مل سکا۔ پولیس نے 32 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ڈی این اے رپورٹ آنے پر ہی اصل قاتل کا پتہ چل سکے گا۔ جس شہر میں لوگ تہذیب لیے پھرتے تھے، وہاں انسانیت کانپ اٹھی۔ 6 سال کی ننھی کلی کو بے دردی سے کچلنے والا درندہ صفت قاتل اب تک قانون کے ہاتھ نہیں آ سکا۔ مروہ کی لاش ہفتے کو پی آئی بی کے علاقے میں کچرے کے ڈھیر سے ملی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بچی سے زیادتی اور قتل کی تصدیق ہو چکی ہے۔ قاتل نے سر پر کوئی بھاری چیز مار کر معصوم کی جان لی۔ پولیس نے مقدمے میں زیادتی اور قتل کی دفعات بھی شامل کر لی ہیں۔ اگر پولیس تفتیش کرتا، پہلے FIR پہ ہمارے گلی میں آ جاتا
تو شاید میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بیٹیاں میں مل جاتی۔ पुलिस ने मजीद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है, जिसके बाद गिरफ्तार अफराद की तादाद 32 हो चुकी है। नवाज नामी शख्स को मरकजी मुल्ज़म कहा जा रहा है, लेकिन DNA रिपोर्ट आने के बाद ही असल कातिल का पता चल सकेगा। जितने भी सस्पेक्ट हैं उनके सैंपल्स कलेक्ट करके हम DNA लैब को भेज रहे हैं। अब तक हमने 15 सैंपल्स जो सस्पेक्ट्स हैं उनके भेजे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये पुलिस अपना बेहतर काम करके इस केस को जल्द से जल्द वर्कआउट करे। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने नन्ही मरवा के घर जाकर वालिदैन से ताज़ियत की और इंसाफ की जल्द फराहमी का यकीन दिलाया। नन्ही मरवा के वालिदैन को इंसाफ दिलाने के लिए हुकूमत सिंध भी मैदान में आ गई है। सरकारी वकील की खिदमात पेश कर दी हैं। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सफ़ाक दरिंदे को अंजाम तक पहुँचाएंगे। बच्ची के कत्ल के दर्दनाक वाक़ये ने सियासतदानों को भी मौम कर दिया। हुकूमती रुकन सिंध असम्बली शैला रजा ने मरवा के घर जाकर ताज़ियत की और वालिदैन को इंसाफ की फराहमी के लिए सरकारी वकील समेत दीगर सहूलतें देने का यकीन दिलाया। कुछ लोग अरेस्ट हैं, कुछ लोगों पे नज़र रखी जा रही है। 5 रुकनी टीम बनाई है DIG साहब ने। अपोजिशन रुकन असम्बली खुरम शेर जमान ने भी मरवा के वालिदैन से इजहार अफसोस किया। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत सिंध पर भी तनकीद की। बिलावल जरदारी को मरवा के घर पर आना चाहिए, मुराद अली शाह को इस बच्ची के घर पर आना चाहिए, इसके वालिद से मिलना चाहिए। वजीर आला सिंध के मुशीर बराए कानून मुर्तज़ा वहाब भी मरवा के घर ताज़ियत के लिए पहुँचे। कहते हैं कि सफ़ाक मुल्ज़िमान को अंजाम तक पहुँचाएंगे। कि इस बच्ची की कुर्बानी के बाद हम इस मामले को खामोश नहीं होने देंगे और जहाँ भी इस तरह के दरिंदे बसते हैं, मैं समझता हूँ कि मुझे पता है कि मेरे आसपास कोई दरिंदा बसता है तो मैं पुलिस को जाके बताऊँगा ताकि मैं और मरवाओं को महफूज बना सकूँ। 6 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल के वाक़े पर पूरा इलाका सोगवार है। गरीब घराने के लिए हुकूमत की तरफ से अभी तक माली इमदाद का भी ऐलान नहीं किया गया। नन्ही मरवा तो दरिंदगी की भेंट चढ़ गई। इलाका मकीन वाक़े पर तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की एहतियात करनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। नन्ही मरवा तो चली गई, लेकिन इसी इलाके में अब भी बच्चे घरों से चीज लेने खुद निकलते हैं और घूमते फिरते नजर आते हैं। घर से बच्चों के निकलने और उन पर नजर रखने की जिम्मेदारी तो वालिदैन की ही होती है। बच्चों को देखना चाहिए, वालदा का सबसे ज़्यादा है कि वालदा को बार बार अपने बच्चों को देखना चाहिए वो बाहर गली में हैं भी कि नहीं। वो खेलने के लिए गए तो वो कहाँ खेल रहे हैं ये भी नहीं पता उनको। वालिदैन कहते हैं मरवा के अगवा और कत्ल के बाद तशवीश तो है, लेकिन कच्ची आबादी के मकीन बच्चों को घरों से निकलने से रोक नहीं सकते। वालिदैन जो है बेचारे तो सुबह सुबह काम वगैरह के लिए चले जाते हैं, रात को 10 बजे आता है और घर में जो फैमिली वगैरह तो बच्चों के साथ तो 24 घंटे बाहर नहीं आ सकते। इलाका चाहे कोई भी हो, वालिदैन अगर अपने बच्चों पर सख्ती के साथ नजर रखें तो ऐसे वाक़या से बचा जा सकता है। कैमरामैन फरहान यूसुफ और एरिक परेरा के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। कराची के इलाके लियारी बगदादी से 5 साला बच्ची को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। मुल्ज़िम बच्ची को लेकर जा रहा था कि इलाका मकीनों ने देख लिया, पूछगछ की तो मुल्ज़िम घबरा गया। फिर क्या हुआ ये जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान से, जो इस वक्त बच्ची के वालिद के हमरा ही मौजूद हैं। बताइएगा अहमर, क्या कहना है बच्ची के वालिद का? जी बिल्कुल, इस वक्त हम बगदादी थाने में मौजूद हैं और एक अच्छी कार्रवाई जो है वो देखने में नज़र आई है। इलाका मकीनों ने एक बच्ची के अगवा की कोशिश जो है वो नाकाम बनाई है। उसमें पुलिस जो है वो बगदादी पुलिस वहाँ पर पहुँची है। उस मुल्ज़िम को ना सिर्फ गिरफ़्तार किया गया है बल्कि बच्ची को भी जो है वो बाजियाब करा लिया गया है। 5 साला बच्ची है ये, जो कि लियारी बियार कॉलोनी की रिहायशी है और अपने वालिद के अपनी वालदा के हमरा ये अपने मामू के घर जो है वो आई थी हाजी कैम, और वहाँ से चीज़ लेने के लिए घर से बाहर निकली है और उसी दौरान उसको एक शख्स जिसका नाम आसिफ बताया जाता है वो जो है वो लेकर वहाँ से आगे बढ़ा है। जब कुछ फासले पे आ गए तो इलाका मकीनों की जानिब से शोर मचाया गया, पूछा गया उससे कि ये किस बच्ची को लेके जा रहा है, वो कौन है। तो फिर मुल्ज़िम कोई जवाब नहीं दे सका। पुलिस वहाँ पर पहुँची, ना सिर्फ उस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया गया बल्कि इस बच्ची को बाहिफाजत तौर पर जो है वो बाजियाब भी कराया गया। सर आप बताइएगा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि अल्लाह ने हमारे ऊपर कर दिया। और बच्ची तकरीबन 2:30-3 बजे घर से निकली चीज़ लेने को, तो ये वापस फिर नहीं आई। हर किसी को ये हम पैगाम दे रहे हैं कि किसी को भी अपने बच्चे को बगैर किसी को बाहर न जाने दिया जाए। वालिदैन को कम से कम इस बात पे नज़र रखनी होगी कि वो अपने बच्चों को अकेले घर से बाहर जाने ना दें।
ताकि इस तरह के वाक़यात रोके जा सकें। जी अहमद अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके डिफेंस में खातून डॉक्टर माहा की खुदकुशी का केस, मुलजिम जुनैद और वकास को अबूरी जमानत में तौसी मिल गई। सिटी कोर्ट में एडिशनल सेशन जज की अदालत में डॉक्टर माहा की खुदकुशी केस की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर अदालत के रूबरू पेश नहीं हो सका। सरकारी वकील ने बताया कि तफ्तीशी अफसर कब्रकुशाई के लिए मीरपुर खास गए हैं। अदालत ने समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी करते हुए मुलजिमान की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। कराची में नई नवेली दुल्हन की पुरअसरार मौत का मुअम्मा हल न हो सका। पुलिस ने अरीबा के शौहर को मुलजिम नामजद करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अहले खाना का कहना है कि उनकी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। यासिर हुसैन की रिपोर्ट। कराची में थाना बलोच कॉलोनी के इलाके महमूदाबाद में 4 माह कबल पसंद की शादी करने वाली लड़की की मौत मुअम्मा बन गई। अरीबा को मुबैना तौर पर उसके शौहर शमशाद ने कत्ल करके खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। अरीबा के अहले खाना के मुताबिक पहले शौहर से खुला लेकर शमशाद से पसंद की शादी की थी। अरीबा खुदकुशी नहीं कर सकती, उसे जान से मारा गया। वालिदैन का कहना है अरीबा के शौहर ने हमें तबीयत खराब होने की इत्तला दी। जब घर पहुंचे तो उसकी लाश पड़ी हुई थी। मकतूला का शौहर शराब नोशी करता था। जिस दुपट्टे से गला घोंटा गया वो बेड के नीचे से बरामद हुआ। 5-6 कॉल करने के बाद वो घर से निकला नहीं, और जब हम वहाँ गए तो कम से कम वो जो हमने अपनी बच्ची की कंडीशन देखी वो कोई 8-10 घंटे हो चुके थे उसको। खुदकुशी या कत्ल कुछ भी कहना अभी कबल अज वक्त होगा। 24 घंटों बाद रिपोर्ट मौसूल होने के बाद असल सूरत हाल वाज़े होगी। गुजरात में 7वीं जमात की तालिबा को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जुल्फिकार हैदर की रिपोर्ट। गुजरात में 7वीं जमात की तालिबा कत्ल, मुलजिम ने लड़की को मुबैना ज्यादती का निशाना भी बनाया। गांव माजरा की रिहायशी 17 साल लड़की घर से सामान लेने बाहर गई, वापस न आई तो अहले खाना ने तलाश शुरू कर दी। वालदा का कहना है घर से कुछ ही फासले पर खेत से शोर की आवाजें सुनी तो देखा कि पड़ोसी हमजा प्लास्टिक की बोतल से बेटी को जहर दे रहा था, जो हमें देखते ही भाग निकला। आशा बेटी 17 साल ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਆਜ਼ਦ ਧੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम हमजा को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की के माजूर बाप ने वजीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की है। जुल्फिकार हैदर, समा, गुजरात। अफसोसनाक खबर देंगे आपको मंडी बहाउद्दीन से, जहां 2 भाइयों में झगड़े की इत्तला मिलने पर बीच बचाव के लिए पहुंचने वाला पुलिस कांस्टेबल सर पर डंडा लग जाने से जाँ बहक हो गया। तफसील जानते हैं समा के नुमाइंदे दीवान आदिल से। दीवान बताइएगा कैसे पेश आया वाक़या? बिल्कुल ये अफसोसनाक वाक़या जो है ये मंडी बहाउद्दीन के इलाका सुहावा में पेश आया है, जहाँ जो है वो मुश्तिल मुलजिम ने जो है वो डंडों के वार करके पुलिस एहलकार वक्कास को जो है वो शहीद कर दिया। पुलिस राय का कहना है कि जी वक्कास जो है वो थाना कुठियाला में जो है वो तैनात था और उसको जो है वो अभी शाम के टाइम जो है वो 115 पे कॉल मौसूल हुई कि 2 भाइयों के दरमियान जो है वो झगड़ा हो रहा है, जिस पर वक्कास जो है वो पुलिस की नफरी के हमरा स्पॉट पे पहुंचा तो बीच बचाव की कोशिश के दरमियान जो है वो वक्कास के ऊपर जो है वो शहीद वक्कास पर मुलजिम ने डंडों से जो है वो हमला कर दिया, जिससे वक्कास जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जो है वो मौका पे जो है वो शहीद हो गया। दीवान आदिल ने अपडेट किया। अंदरूनी लाहौर में मकानों की खस्ता खाली, मजीद 6 जिंदगियां निगल गई। हमसाये की दीवार दूसरे घर पर गिरी और एक ही खानदान के 10 अफराद मलबे तले दब गए। जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी और 3 कमसिन भतीजे शामिल हैं। उसामा दुरानी की रिपोर्ट। बरसात अंदरूने शहर के मकीनों के लिए बनी है सख्त आजमाइश। एक और हंसता बसता घर उजड़ गया। अंदरून टकसाली गेट के इलाके में बोसीदा दीवार मुल्हिका घर के अहले खाना के लिए कातिल साबित हुई। रात गए दीवार का कुछ हिस्सा हमसायों के घर की छत पर आन गिरा। बच्चों और खवातीन समेत 10 अफराद मलबे तले दब गए। इमदादी इदारों के आने से पहले अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाया, लेकिन 6 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जिनमें घर के सरबराह, उनकी अहलिया, 3 कमसिन भतीजे और 16 साल की मेहमान शामिल हैं। मेरे 3 पुत्र मर गए ने, मेरी भैन मर गई, मेरा भरा मर गया, मेरी भतीजी मर गई, एक पुत्र मेरा बचे है, भतीजियां 2 दिन बचियां ने बस।
2 अफराद ने भाग कर जान बचाई, जबकि 4 अफराद को मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया। अहले खाना के मुताबिक बार बार शिकायत के बावजूद हमसाये ने अपनी दीवार की मुरम्मत कराई, ना ही उसे गिराया। ਬੱਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਏ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਬਗੌੜ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡੈਥ ਹੋ गई ਉਹਨਾਂ ਦੀ। अंदरून शहर के मकीनों ने वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के नारवा सलूक की भी शिकायत की है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ उसामा दुरानी, समा, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मोहम्मद में मार्बल की खुदाई के दौरान पहाड़ी तोदा गिर गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 22 मजदूरों की लाशें निकाल ली हैं। वज़ीर आला ने जांबाज़ अफराद के लवाहिकीन और ज़ख्मियों के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया है। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में इजाफा हो गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में शहरियों को लूट लिया गया। बात करेंगे आमिर मजीद से। आमिर, किस वक्त की है ये वारदात और पुलिस ने अब तक क्या किया? जी सिद्रा, ये दिन दिहाड़े ये वाकया पेश आया है। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B का ये इलाका है, जहां पर 3 मुसल्लह मोटरसाइकिल मुल्जिमान जो है वो एक गली में खड़े ताक़ुब कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कोई इस गली में आए और उसको लूट ले। आप देख रहे होंगे नाज़रीन, उसमें जो मुल्जिमान हैं वो इंतजार करते हुए नजर आते हैं। 2 मोटरसाइकिल सवार जैसे ही गली में दाखिल हुए इन्होंने उनको लूटा है। इसके अलावा जो और भी शहरी इस गली में मौजूद थे उनको भी लूटा और बआसानी जो है वो फरार हो गए हैं। इनके जो चेहरे हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। अब ये चैलेंज है कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए कि वो अब जो इनके चेहरे वाज़ेह हैं और उनकी गिरफ्तारी कितनी जल्दी जो है वो मुमकिन हो सकेगी। ये और इन मुल्जिमान ने वारदात से पहले बाकायदा रैकी भी की। आमिर मजीद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। साबिक़ कमिश्नर इफ्तिखार शलवानी ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची का चार्ज संभाल लिया है, लेकिन मीडिया के लिए दफ्तर के दरवाजे बंद कर दिए। सलमान अहमद की रिपोर्ट। नया बॉस आते ही केएमसी में हटो बचो का शोर मच गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की कमान संभालने के लिए इफ्तिखार शलवानी ने पहुंचते ही अपने दाएं बाएं अफसरान को टोका कि मास्क क्यों नहीं पहना। आपने आते ही पहले कोट उतारा और केएमसी बिल्डिंग के दौरे पर निकल पड़े। जिन दफातर के दरवाजे बंद थे वहां बिल्ली ने एडमिनिस्ट्रेटर का इस्तकबाल किया। साहब के आने से पहले ही ऊपर से ऑर्डर आ चुका था कि मीडिया को अंदर ना आने दिया जाए। समा ने बड़ी मुश्किलों से अंदर का रास्ता लिया तो एडमिनिस्ट्रेटर को भी बात करना पड़ी, मगर जवाब देने से कासिर नजर आए। बताइएगा कि आपके चार्ज संभालती हम देख रहे कि मीडिया पे दरवाजे बंद हो गए, गार्ड्स तो हमें दरवाजे पे हाथ तक लगा नहीं दे रहे। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अभी आज मेरा पहला दिन है, बल्कि पहला घंटा है, अभी चीज़ों को समझ रहे हैं। मीडिया के साथ इंशाल्लाह तफसीली बात करेंगे। इफ्तिखार शलवानी मीडिया में कब आएंगे ये तो नहीं मालूम। अलबत्ता चार्ज संभालने के बाद कराची के एडमिनिस्ट्रेटर ने अफसरान की दौड़ें लगवा दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तैनाती पर एमक्यूएम ने सिंध हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तकर्रुर को लिसानी तैनाती करार दे दिया। कहते हैं अब सड़कों पर तो आना पड़ेगा। कराची से लेने का लेकिन देने का किसी की नीयत नहीं रही। अब दे रहे हैं तो हम इस पर तनकीद कर कर इस उम्मीद को ख़त्म नहीं करना चाहते। पूरे सिंध में एडमिनिस्ट्रेटर्स का तयन हुआ तो उनको एक लिसानी इकाई के अलावा कोई नहीं मिला। साबित कर किया जा रहा है सिंध में ना तो किसी और को नौकरी मिलेगी, ना तरक्की मिलेगी, ना तालीम मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जिसको एडमिनिस्ट्रेटर लगाया है वो अनवर मजीद के साथ खुद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की 2 प्रोजेक्ट में उस पर नेट इंक्वायरी चल रही है। पैसे कराची में लगने के बजाय कहीं ऐसा ना एक बार फिर दुबई के रियल एस्टेट इसके जरिए ऊपर चले। इस दफा बड़ी बेशर्मी के साथ सिंध के इत्तेहाद के खिलाफ स्टेटस को लगाकर लिसानी तकसीम पे मोहर लग। क्या होने जा रहा है हमें अंदाजा नहीं। ऐसा ना हो करप्शन और इत्तेसाब का ये नारा फिर अपना दम तोड़ दे। जो कुछ किया गया है सिंध को मुकम्मल तौर पर तकसीम करने की सनद का ऐलान कर दिया। इफ्तिखार शलवानी ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची का चार्ज तो संभाल लिया, मगर शहरियों को उनसे कम ही तवक्कुआत हैं। वजह क्या है, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में मुनाफाखोरों को लगाम देने में नाकाम। साबिक कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया का चार्ज तो संभाल लिया, लेकिन उनकी गुज़िश्ता कारकर्दगी पर कई सवालिया निशान हैं। कमिश्नरी के दौर में तो कोई चीज उनके कंट्रोल में ना थी। दूध वाले जब चाहते कीमत बढ़ा देते
اور کمشنر صاحب صرف بیان داغتے رہتے۔ موصوف نے دودھ کی قیمت 96 روپے مقرر کی، لیکن دودھ 120 روپے لیٹر فروخت ہوتا رہا۔ بات کریں آٹے کی تو بھی سرکاری نرخ پر فروخت کرانے میں ناکام رہے۔ کچھ نہیں کر سکتے وہ، اور یہ پیپلز پارٹی کی جو ہے اپنی پالیسی ہے، اپنا بندہ بٹھا دیں، اپنے مطلب کے کام کراتے رہیں، بس اور کچھ بھی نہیں۔ افتخار شہلوانی سندھ حکومت کی آشرواد سے ایڈمنسٹریٹر تو بن گئے، مگر شہریوں نے ان کی تعیناتی پر سوال اٹھا دیے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بن کے وہ انصاف کر پائیں کراچی والوں سے؟ کیونکہ ایک آدمی جب کرپشن میں کمشنر بن کے نہیں کر سکا تو ایڈمنسٹریٹر بن کے کیا کر لے گا؟ وہ منافع خوروں سے لڑ ہی نہیں پائے تو وہ لازمی سی بات انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اپنے، اور اب یہ دیکھیں ہمارا یہ حال ہونا ہے۔ باقی اللہ مالک، کچھ کم ہوا ہی نہیں، الٹا مہنگائی ہوتی گئی، دیکھا جائے تو لوگ سڑکوں پہ آ گئے تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے وہ۔ جب کمشنر تھے تو ان کی کوئی نہیں سنتا تھا، اب ایڈمنسٹریٹر بن گئے تو کیا کراچی کے مسائل حل کر سکیں گے؟ کیمرامین ایرک پریرا کے ساتھ سلمان احمد، سما، کراچی۔ سندھ میں سیلاب سے تباہی کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت اور سپریم کورٹ سے مدد مانگ لی۔ بولے سندھ کے پیسے ریلیز کیے جائیں تاکہ لوگوں پر خرچ کر سکیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی شاہانہ انداز میں 50 گاڑیوں کے قافلے میں میرپور خاص پہنچے۔ بلاول بھٹو کا دورہ سندھ اور شاہانہ انداز۔ جعل قائد میرپور خاص 50 سے زائد گاڑیوں کے قافلے میں پہنچے۔ ہٹو بچو کے شور میں پی پی چیئرمین نے متاثرین سیلاب کی داد رسی کے لیے وفاق، سپریم کورٹ اور فوج سے مدد مانگ لی۔ سپریم کورٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے پاس سندھ کا عوام کا پیسہ بھرا ہوا ہے، وہ پیسہ ہمیں دے دو۔ جعل قائد اس سے پہلے بھی کراچی میں یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ صوبے کو براہ راست رقم دی جائے۔ سندھ کا عوام کا پیسہ سندھ حکومت کو دو، سندھ حکومت کو دو، تاکہ ہم ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ بلاول کی بار بار کی اپیلوں کے باوجود وفاق نے نو لفٹ کا بورڈ لگا رکھا ہے۔ یہ پیسے ان کو دے نہیں سکتے تھے بیکاز سچی بات ہے کہ ہمارا اعتبار نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں پیپلز پارٹی 10% سے اوپر کے حساب کتاب کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کراچی کی تباہی پر سیاست کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے مفروضوں پر مبنی 1100 ارب روپے کا پیکج دے کر کراچی والوں کو لالی پاپ دینے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے وفاق نے کون سے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے؟ ایک ایسے وقت پر جب کراچی کے اندر اتنی تباہی واقع ہو چکی ہے، امید یہ کی جاتی تھی کہ حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی اور حکومت سندھ کے ساتھ مل کر کراچی کے عوام کی آبادکاری اور کراچی کی تعمیر نو کے لیے اپنے تمام وسائل جھونکے گی۔ وفاقی حکومت کراچی کی تباہی کے اوپر بھی سیاست کر رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے 5 گھنٹوں کے لیے کراچی کو ہاتھ لگایا اور واپس آ کر سندھ حکومت کے ساتھ ایک نئی جنگ شروع کر دی۔ 1100 ارب کا ایک مفروضوں پہ مبنی پیکج کا اعلان کر کے انہوں نے کراچی کے عوام کو ایک لالی پاپ دینے کی کوشش کی۔ کراچی میں بارش ہوئے 2 ہفتے ہو گئے لیکن نیا ناظم آباد سے پانی اب تک نہیں نکالا جا سکا۔ کراچی کی طوفانی بارش نے نیا ناظم آباد کو ایسا ڈبویا کہ تاحال اس کے کئی بلاک سے پانی نہیں نکالا جا سکا۔ آج بھی نقل مکانی کرنے والے رہائشی اپنے گھروں کو واپس نہ لوٹ سکے۔ نیا ناظم آباد کی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ پانی نکالنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی تقریباً 22 سے 26 پمپ ہمارے آپریشنل ہیں جو مختلف سائٹس پہ ہم نے لگائے ہوئے ہیں اور پانی کا نکاسی کا کام پورا چل رہا ہے زور شور سے، اور 24/7 یہ کام کر رہے ہیں۔ نیا ناظم آباد کے رہائشی کہتے ہیں نقصان اتنا ہو چکا ہے کہ دوبارہ تنکا جمع کرنے میں کافی عرصہ لگ جائے گا۔ ہمارا بھی بہت نقصان ہوا ہے، میرے اگلے مہینے بچے کی شادی تھی، میرا چلیں اب اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ اگر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو عمل درآمد کرے ان لائنوں پر
तो नया नाज़िमाबाद के साथ साथ ये जो इलाके हैं ये सारे डूब चुके थे उस सेवर लाइन के बंद होने की वजह से। नया नाज़िमाबाद के मकीन ताहाल बारिशों से पैदा होने वाली तबाही से खौफजदा हैं। उनका मुतालबा है कि मुस्तकिल बुनियादों पर ऐसे इक़दाम किए जाएं कि आइंदा बारिशों में इनके आशियाने न डूबें। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। कराची में गुज्जर नाले के अतराफ तजावुज़ात के खात्मे के लिए मकानात पर निशानात लगाए जा रहे हैं, मगर मकीन कहते हैं कि मुतबादिल मिलने तक घर नहीं तोड़ने देंगे। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। पैदा हुए, बड़े हुए, बुढ़े हो गए, अगर गरीब आवाम को इस तरह उनको नहीं चाहिए था। गरीब आवाम को उठा के पहले जगह दें, फिर उसके बाद हम लोग ये तोड़ने देंगे, वैसे नहीं तोड़ने देंगे। तजावुज़ात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई के ऐलान ने गुज्जर नाले के अतराफ बसने वालों की रातों की नींदें उड़ा दी। कहते हैं बिलावल भुट्टो की बात का भरोसा नहीं, पहले भी मकानात तोड़े गए मगर कुछ नहीं दिया गया। ये अगर एक प्लाट दे देंगे या उस पे 50,000 या लाख रुपया दे देंगे और 4-4 फैमिलियाँ रहती है, वो तो लड़ाई फड्डे वाला काम उल्टा हो जाएगा। गुज्जर नाले के अतराफ 100 से जायद फुट तजावुज़ात का खात्मा किया जा चुका है, जबकि 600 से जायद तजावुज़ात की निशानदही मुकम्मल हो चुकी है। हुकूमत ने मुतबादिल जगह देने का वादा तो किया मगर अब तक वादे नहीं किया गया कि बेघर होने वालों को कहाँ बसाया जाएगा। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। दरियाए सिंध और चनाब के रेलों से बड़े नुकसानात का सिलसिला जारी है। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए, फसलें बर्बाद हो गईं। मॉनसून बारिशों के बाद दरिया चिनाब के रेलों से तबाही। कोट मिठन के मुकाम पर बड़ा रेला गुजरने पर दरिया किनारे बस्ती को अलर्ट कर दिया गया। ऊंचे दर्जे के सैलाब के खतरे के पेश नजर मकीन घरों को छोड़ गए। मुतासरीन ने इमदादी टीमों के न पहुंचने का शिकवा किया। दरिया सिंध में चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर तुग़यानी की सूरत हाल। रहीम यार खान के करीब दर्जन से जायद देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी पानी रिहायशी बस्तियों में दाखिल। सब कुछ डूब जाने और हुकूमती इमदाद न मिलने पर मायूस मुतासरीन घरों को छोड़कर जाने लगे। खैरपुर के करीब दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कच्चे के इलाके डूबे तो हजारों अफराद फंस गए। मुतासिरा इलाकों में इमदादी काम शुरू न हो सका। मकीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मुकामात की तरफ जाने लगे। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट ने 9 और 10 सितंबर को हाई फ्लड की वार्निंग जारी करते हुए करीबी आबादी को महफूज मुकामात पर जाने की हिदायत की है। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। साहिल जोगी की रिपोर्ट। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हुक्काम ने फ्लड कंट्रोल सेंटर कायम करके पुश्तों की निगरानी बढ़ा दी। तो जो हमारे बंद हसास हैं वहाँ तो बड़ी विजिलेंसी है हमारी, और हमारे अफसरान की भी, जो वहाँ के कस्टोडियन हैं, एक्शन साहिबान हैं, वहाँ उनकी कैंप लगी हुई है और मशीनरी सारी डिप्लॉय है। दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफा हुआ तो आसपास के अजला के सैकड़ों देहात मुकम्मल तौर पर डूब गए। जिनका घर तक बाकी न रहा वो माल मवेशियों के साथ नकल मकानी पर मजबूर हो गए। हम जो है ना बहुत परेशान हैं। हम गांव जो है ना सारा डूब गया है, हमारे जो है ना घर सारे डूब गए हैं। इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। महकमा इन्हार ने सक्खर बैराज पर अगले 24 घंटों के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले का इम्कान जाहिर किया है। कैमरामैन शाहिद सोलंकी के साथ साहिल जोगी, समा, सक्खर। आसिफ अली जरदारी की मुबैना फ्रंट कंपनी को कर्जा कैसे मिला? समा ज़िमनी रेफरेंस की तफसीलात सामने ले आया है। आसिफ अली जरदारी ने करीबी दोस्त हुसैन लवाई को कर्ज दिलवाने पर दिल खोल कर नवाजा। घर का तोहफा भी दिया। कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने के नाम पर मजीद 80 करोड़ जारी करवाए। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। अजब करप्शन की गजब कहानी। साबिक सदर आसिफ जरदारी की मुबैना फ्रंट कंपनी को कर्ज कैसे मिला? समा ज़िमनी रेफरेंस की तफसीलात सामने ले आया। कर्ज दिलवाने पर हुसैन लवाई को तोहफे में घर दिए जाने का इंकशाफ। हुसैन लवाई के लिए घर खरीदा भी पार्थिनॉन के नाम पर हासिल कर्ज से। हुसैन लवाई ने घर अपनी अहलिया के नाम पर खरीदा। निजी बैंक के सरबराह की हैसियत से नेशनल बैंक को गलत मालूमात फराहम की। कर्ज में शराकत दारी के लिए बैंक को फ्रॉड पर मबनी प्रपोजल भेजा। 1.5 अरब कर्ज 2012 में वापस करने के बजाय फ्रॉड प्लान के तहत कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने के नाम पर मजीद 80 करोड़ रुपए भी जारी करा लिए गए।
पार्क लेन जिमनी रेफरेंस में आसिफ जरदारी समेत दीगर मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए बुध 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिए जाने का भी इम्कान है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। पार्क लेन केस में मुलजिमान पर फर्द जुर्म आज आयद की जाएगी। आसिफ अली जरदारी पेशी के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए नैब ने सिक्योरिटी भी तलब कर ली है। बड़ी पेशी का बड़ा दिन आ गया। पार्क लेन केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आज आयद की जाएगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी एहतिसाब अदालत में पेश होने के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुके। आसिफ जरदारी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जरदारी हाउस के लिए रवाना हुए तो उनकी साहबजादी आसफा भुट्टो जरदारी भी हमरा थी। जियाले कायद ने जरदारी हाउस में पेशी से मुताल्लिक कानूनी टीम से मुशावरत भी की। दूसरी तरफ किसी भी नाखुशगवार वाक़िए या हंगामा आराई से बचने के लिए नैब ने मदद तलब कर ली। नैब हुक्काम ने सेक्रेटरी दाखिला के अलावा चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को सिक्योरिटी के लिए खत लिख दिया। प्रोसिक्यूशन टीम के लिए रेंजर्स की सिक्योरिटी भी मांग ली गई है। एक स्कैंडल, 43 मुकदमात, 186 मुल्जिमान के नाम ECL में शामिल, 52 गिरफ्तारियां, 23 अरब की रिकवरी। जाली अकाउंट स्कैंडल नैब की तारीख का मेगा स्कैंडल बन गया। आसिफ जरदारी, ओमनी ग्रुप और कई जाली रहनुमाओं के खिलाफ 33 मजीद रेफरेंस दायर होने का इम्कान। नैब रावलपिंडी ने अदादोशुमार जारी कर दिए। जाली नामों पर बैंक अकाउंट्स खोलने मुकदमात एक एक करके 43 हो गए। 10 रेफरेंस अदालतों में दायर होने के बाद 12 इन्वेस्टिगेशन और 21 इंक्वायरियां अब भी जारी चुका। नैब रावलपिंडी की रिपोर्ट सामने आ गई। स्कैंडल में आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और फरियाल तालपुर समेत ECL में शामिल मुल्जिमान की तादाद 186 हो गई। 64 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, जिनमें से 52 गिरफ्तार हुए। बैरून मुल्क फरार 12 मुल्जिमान को अदालत इश्तिहारी करार दे चुकी। रिपोर्ट के मुताबिक मेगा स्कैंडल में प्ली बार्गेन के जरिए 18 मुल्जिमान ने 23 अरब रुपए वापस किए। ख्वाजा अनवर मजीद सबसे ज्यादा 9 मुकदमात में मुल्जिम नामजद। आसिफ जरदारी के खिलाफ 4 रेफरेंस अदालत में मौजूद हैं। ठट्ठा शुगर मिल की फरोख्त, सिंध में ट्रैक्टर सब्सिडी करप्शन, पावर प्लांट्स को गैर कानूनी सब्सिडी की इंक्वायरियां जारी हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी, मुराद अली शाह, शर्जील मेमन के खिलाफ नए मुकदमात का इम्कान मौजूद है। नैब के मुताबिक अब तक दायर किए गए रेफरेंसेस 200 अरब रुपए से जायद की करप्शन से मुतालिक हैं। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। बेनामी अकाउंट्स के बाद बेनामी गाड़ियां भी मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। FBR ने 12 करोड़ मालियत की 19 गाड़ियां कब्जे में ले ली हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में FBR का बड़ा एक्शन। बेनामी अकाउंट्स के बाद बेनामी गाड़ियां भी मंजर-आम पर आ गईं। FBR के बेनामी जोन कराची ने कार्रवाई करते हुए 19 गाड़ियां कब्जे में ले लीं। ये गाड़ियां एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध में रजिस्टर्ड हैं, जो असल मालिकान ने मुलाजमीन या किसी और के नाम ली। बेनामी गाड़ियों में BMW, मर्सिडीज बेंज, 4x4 और दीगर शामिल हैं। 19 गाड़ियों के असल मालिकान को 7 रोज में FBR से राब्ता करने की मोहलत दी है। मालिक सामने न आया तो FBR कानून के तहत गाड़ियां फरोख्त करके रकम कौमी खजाने में जमा करा देगा। अशरफ खान, समा, कराची। तनख्वाह सिर्फ 25,000, अकाउंट में कहां से आए 8 अरब सरकार? मंसूर, ये बड़ा तहलका है। ये जरदारी साहब के करीबी साथी हैं, हुसैन लवाई साहब जो बैंक के प्रेसिडेंट हैं। तो यार बहुत बड़ा मामला है ये। उसके पीछे जिन लोगों के नाम नजर आते हैं उनमें से तो एक भी कमजोर बंदा नहीं है। सिंध मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। आसिफ अली जरदारी का नाम ECL में डाल दिया गया है। तहलका खेज खबर है। इस पूरी खबर को ब्रेक करने वाले हैं समा के खुसूसी नुमाइंदे जनाब मुस्लिम बुखारी साहब। ओमनी वाले पहले जाली अकाउंट खुलवाते, अब सब्सिडी हड़प कर गए। हमने आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया है। आसिफ अली जरदारी को फर्ज कैसे मिला सब सामने आ गया है। पाकिस्तान रेफरेंस के ज़िमनी रेफरेंस की कॉपी समा ने हासिल कर ली। हुसैन लवाई को इन खिदमात के एवज में एक घर का तोहफा दिया गया था। आसिफ अली जरदारी के साथ वो एहतिसाब अदालत में पेश होंगे। आगे बढ़ते हैं। शुएब दस्तगीर और नए CCPO लाहौर उमर शेख के दरमियान तनाज़े का ड्रॉप सीन। बुज़दार सरकार ने 5वां IG भी तब्दील कर डाला। शुएब दस्तगीर की छुट्टी, इनाम गनी को पंजाब पुलिस का नया सरबराह लगा दिया गया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। पुलिस अफसरों की हिमायत काम आई। ना वजीर आजम और वजीर आला से मुलाकातें, मातहत
जीत गया, पंजाब पुलिस का सरबराह हार गया। बुज़दार सरकार ने शुएब दस्तगीर को तब्दील कर दिया, इनाम गनी नए आईजी पंजाब तैनात। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद शुएब दस्तगीर ने एक रोज कबल वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की और CCPO के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। यही नहीं, उन्होंने अपने ओहदे पर मजीद काम जारी रखने से भी मुआज़रत कर ली। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पहले ही कह चुके हैं, जो काम करेगा वही ओहदे पर रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नमेंट जो चाहती है जिसको जहाँ पोस्ट करना चाहे, कि जिस खिलाड़ी को जहाँ पे रखना चाहे वो उसका प्रीरोगेटिव है। जो अफसर काम करेगा वही रहेगा, जिसने काम नहीं करना वो हमारी टीम का ऐसा नहीं होगा। इससे कबल सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन का इजलास हुआ। अफसरों का कहना था कि अगर CCPO IG का हुक्म नहीं मानेगा तो लाहौर पुलिस भी CCPO का हुक्म नहीं मानेगी। CCPO उमर शेख अपने से मंसूब बयान की वजाहत पेश करने के लिए सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचे तो उन्हें इजलास में शिरकत से रोक दिया गया। शुएब दस्तगीर CCPO की तैनाती के रोज से अपने दफ्तर भी नहीं गए। आखिरकार मामला उनको ओहदे से हटाने पर जाकर खत्म हुआ। जहांगीर खान, समा, लाहौर। CCPO लाहौर ने पहली मीटिंग में ही कह दिया था कि अब IG का नहीं मेरा हुक्म चलेगा। तैनाती की मुखालफत करने वालों को बता दो मैं आ गया हूँ। साबिक IG पंजाब और CCPO उमर शेख में तनाज़ा कैसे शुरू हुआ, जानते हैं रियाज अहमद की रिपोर्ट में। साबिक IG और CCPO उमर शेख में तनाज़ा कैसे शुरू हुआ, समा ने पता लगा लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की लाहौर आमद पर शुएब दस्तगीर ने उमर शेख की बतौर CCPO तैनाती की खुलकर मुखालफत की। IG की मुखालफत के बावजूद उमर शेख को लाहौर पुलिस का सरबराह लगा दिया गया। उमर शेख ने पुलिस अफसरों का इजलास बुलाया और भरे इजलास में कह दिया, अब IG का नहीं उनका हुक्म चलेगा। बोले तैनाती की मुखालफत करने वालों को बता दो मैं आ गया हूँ। मीटिंग के शुरका में से किसी ने ये सब बातें शुएब दस्तगीर तक पहुँचा दी, जिस पर उन्होंने दफ्तर जाना छोड़ दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से मिलकर उन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। IG पंजाब को इस सारे मामले में पुलिस अफसरों की एसोसिएशन की हमायत भी हासिल रही, लेकिन वो ओहदा बचाने में कामयाब न हो सके। रियाज अहमद, समा, लाहौर। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं अहम ओहदों पर तब्दीलियाँ होती रहती हैं। IG पंजाब की तब्दीली भी मामूल की कार्रवाई का हिस्सा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का इल्ज़ाम है कि हुकूमत IG तब्दील करके पुलिस गर्दी करना चाहती है। IG पंजाब की तब्दीली हुकूमत का सवाब दीदी इख्तियार करार। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं जो कारकर्दगी नहीं दिखाएगा उसे घर जाना होगा। चेंज करेंगे हम, इसमें मुझे कोई वो नहीं है। ये तो होगा। जो परफॉर्म नहीं करेगा, जो उस पॉलिसी से एग्री नहीं करेगा, जो किसी के साथ दूसरा जो काम कर रहा है उसके साथ अगर उसका इत्तेफाक नहीं होगा तो हमने तो फैसले करने हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून को इस फैसले से भी इंतकाम की बू आने लगी। एहसन इकबाल ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत IG पंजाब को पुलिस गर्दी के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। हर आने वाले IG को कहा जाता है कि वो PTI के मुखालफों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब का ट्वीट शेयर करते हुए लिखा कि लाहौर का मीडिया जानता है पत्थरों वाली सरकार को तब्दीलियों से तकलीफ क्यों हो रही है। उन्होंने इनाम गनी के बतौर IG पंजाब तकर्रुरी पर मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो बेहतरीन काम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान पुलिस में सियासी मुदाखलत का खात्मा चाहते हैं। माजी में वो कई बार इसका इजहार भी कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल तौर पे पुलिस को डीपोलिटिसाइज किया। एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स जब बन जाती है वो फिर प्रोफेशनल तौर पे क्राइम को डील करती है। जो कामयाबी हम चाहते थे और जो हुई वो पख्तूनख्वा की पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है उस कामयाबी। तो फख्र होगा कि पहली दफा पाकिस्तान में पुलिस का निज़ाम है जो प्रोफेशनल है, गैर सियासी है, मेरिट पे है। हमारी जो पुलिस पख्तूनख्वा की है ये बाकी सूबों की पुलिस के लिए मिसाल बन रही है। कोई सियासतदान सिफारिश नहीं कर सकता कि मेरा SHO रखवा दो और मेरा पुलिस वाला रखवा दो। पुलिस गुलाम ना हो घरों की, शरीफ घरानों की या किसी और की। ये पुलिस पाकिस्तान की पुलिस है। जो कामयाबी हम चाहते थे और जो हुई वो पख्तूनख्वा की पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है उस कामयाबी में।
जब हमारी हुकूमत आएगी हम आपको पुलिस ठीक करके दिखाएंगे। पुलिस को आइसोलेट किया सारे पॉलिटिकल प्रेशर से, अब पंजाब को ठीक करेंगे। खेल से खबर आपको देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए डोमेस्टिक सीजन के लिए खिलाड़ियों के मुआवजों का ऐलान कर दिया। यूएस ओपन में तारीख रकम हो गई। ग्रैंड स्लैम में पहली बार 3 माएँ नॉकआउट मरहले में पहुंच गई हैं। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।